श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा Good morning, good afternoon, good evening. It depends on where you are. We are very happy that Veerji from India has joined us. Dil Diyan Galla. So we काफी दिन हो Sri गए. Akal, Namaskar, good morning, good Sat Shri evening. Akal to all. Assalamu alaikum. Namaste, Sat Shri Akal to everyone. And it's actually Navratras के भी time है. माता रानी सबको blessings भी दे. And also I would request Veerji and I would like to say condemn what's happening in the world right now. I'm very upset that what's happening. Innocent lives are being slaughtered for this unnecessary in the world, what's happening in the world. I really condemn that, and I'm all for the human beings, people, that they have a right to live. The life should not be taken away the way it has been. So I really pray for their souls, pray for them, pray for their families. कि उनको किस चीज़ के थोड़ा शांति दे. It's not easy, but we just pray for them that this thing stops. And now I will request Virji to also say something about this, few words to condemn this, what's happening in this society. So Anywhere in the world, it is always condemned. yeah, If innocent people are being killed by the mistake of the mankind, and then they are being punished, the mothers, wives, and the children, and they are subject to the mistakes of others, and innocent people are being killed. It's not fair. At the right. same time, humanity is being crushed. Exactly, I agree. So it's just I don't know what to say when I hear about the children and the women and the innocent lives taken away, like unnecessary because countries are fighting. But why to kill innocent children? You know, that's my whole. I'm not taking any country's side for this thing. I don't believe in any country's side. War is war, and then innocent people are the ones who really their lives are gone, and they are the ones who get compromised. And then they get for unnecessary people. They want to do this, they want to do that, and they want to take occupy places or whatever they want to do. But innocent people's lives are gone, and that's not good. That's what I believe in. So I'm sure all of us do the same thing. So I would like to just say, if everybody can just close their eyes for a moment, and we can just say a little prayer in our minds for them, and that maybe that will go around the world, and we hope for and pray for the peace for everyone. So really request that.
Thank you everyone. Thank you. So मैं वीर जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. वीर जी is actually a civil engineer with 30 years research on SDGs. In 1996, he started an NGO called The Living Treasure, a registered non-profitable headquartered in New Delhi. And the twin objectives are personality development through self-elevation, and two, helping the needy, less privileged brethren of our society by providing them with the basic services to all. He conducts seminars, lectures, discourses, weekly Zoom sessions, live webinars, and one-to-one dialogue at various schools, universities, interfaith gatherings, and congregations. He has written several books of common interest in Punjabi, Hindi, and English, and his lectures are available on pen drives, audio CDs, video CDs, and MP3s and DVDs, and also on the website, which is www.thelivingtreasure.org. His course is available on YouTube, Facebook, and have been aired on various channels: Asta, Tara, Zee Punjabi, Chardi Kala, Time, and TV, etc. And Living Treasure organization also took up initiatives to provide food, oxygen cylinders in COVID time, creating a world of selfless service by dispelling darkness through gems of Gurbani. The Living Treasure is a registered, non-profit, non-governmental organization having the twin objectives of, like I just said, personality development through self-evaluation, helping the needy, and by providing them with the basic services without any discrimination of religion, caste, and creed. So welcome Veerji to our platform, Dil Diyan Gallan. And I know you've been here before a couple of times. But आज का जो topic है, it's very interesting, and I like to say that it's divine mechanisms of the human body. So I'm having a little difficulty with that word sometimes. Tongue twister होता है. But anyway, so Veerji is going to explain, and thank you so much for joining, Veerji. Thank you. I really appreciate it that you come to our platform. Thank you so much. Thank you, वीना लांबा जी. आपका ये जो प्लेटफॉर्म है दिल दियां गल्लां, आप इसमें पहले भी 4-5 बारी मुझे प्रिविलेज दे चुके हैं और मैं उसके लिए आई फील ऑनर्ड. थैंक्स अ लॉट. और आपकी ऑडियंस भी काफ़ी ग्रेसफुल होती है और डिस्कस करने में, शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है. तो जो हम आज का टॉपिक ले रहे हैं, ये टॉपिक है डिवाइन मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी. Yes. और अगर हम ये काउंट करें कि रूहानियत क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, तो ये रूहानियत की जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है हमारी बॉडी को बनाने की, ये प्रोग्राम में हम उसको समझ सकते हैं, हाउ आवर बॉडी वर्क्स. हम सबको एक टर्म यूज करनी है जो इंग्लिश में वाइडली गलत यूज हो जाती है. वो टर्म है मन. हम इंडिया की जिसको हम सब जगह वर्ड को यूज करते हैं मन, उसको इंग्लिश में माइंड नहीं कह सकते. सो मन इज कॉल्ड हाउस ऑफ थॉट्स. सो ये हमारी पहली और टॉप मोस्ट रूलिंग एंटिटी है हमारे अंदर, कि हर किसी के बॉडी में ये सिस्टम है कि उसका मन क्रिएट हो जाता है. क्लियर? मन चाहेगा तो हम कुछ करेंगे, मन चाहेगा तो मैं दूध पीऊंगा, मन चाहेगा तो मैं पानी पीऊंगा, मन चाहेगा तो मैं ठंडा पानी पीऊंगा, मन चाहेगा तो मैं सो जाऊंगा, मन चाहेगा तो मैं जागता रहूंगा. सब कुछ डिपेंड करता है मन के ऊपर. बट
मन को बोलते हैं मेडिकल साइंस में हाउस ऑफ थॉट्स। एवरेज मेडिकल साइंस में बताया जाता है एवरेज लोगों को पर डे 60 to 65,000 थॉट्स, वो उनको यूज करे या ना करे। 60 या 65,000। लेकिन इसके बारे में मन को ये समझ नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग है। मन की जो थॉट्स लाने वाला मेन टूल है, ऐसे बोल लो कि एक एंटेना है, ऐसे बोल लो एक एरियल है, ऐसे बोल लो एक रिसेप्टर है, और या ऐसे बोल लो कि जैसे रेडार है, उसके रेडार उसको बोलते हैं इंडियन टर्म्स में सुर्त। Mm-hmm. सुर्त एक ऐसा पॉइंट है या मैकेनिज्म है जो मन को थॉट्स लाके देती है। सुर्त को अगर सिंपल बोलना हो तो हम बोल सकते हैं ध्यान। है वीना जी? Anji, I'm looking at the, just seeing if I can, I mean, आपको मैं थोड़ा करूँ highlight because we're having a lot of guests over here, and let me see. Yeah, we have to kind of, let me see. I'll have to highlight. वही मैं कर रही हूँ try. I'm gonna see if I can just put you, not me but you, आपको करें। चलो हाँ जी continue जी। मैं I cannot control that right now, so it's okay. एनीवेज, हमारे पास मन है जो इस बॉडी का किंग है। King, okay. रिगार्डलेस हमारा स्टेटस क्या है, रिगार्डलेस हमारी एज क्या है, रिगार्डलेस मेरा जेंडर कौन सा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड all the human beings subject to their body, man takes place as a king of the body. That's true. ये जो मन है ना, इसको सारे मैसेजेस देने वाला जो है वो टूल है मैकेनिज्म में सुर्त, ध्यान। ओके, हाँ जी। सुर्त ध्यान के कारण मन के पास पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आती हैं। ये ऐसे मान लो कि मन की डिजायर्स के मुताबिक सुर्त काम करती है ना, तो वैसी वाली थॉट्स आती है। इसको गुरबानी में ऐसे कोट किया गया, सन का अधिक नारिद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। हमारी बॉडी के अंदर एक आइटम है जिसका नाम मैंने बोला मन। मन हमारी बॉडी का राजा है, मन हमारी बॉडी का किंग है। मन को अगर सुर्त से जो मैसेज मिलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर मन को फिल्टर करना नहीं आता तो मन वो पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेजेस दोनों अपने माइंड को दे देता है। दैट मीन्स मन और माइंड अलग चीज है। मन इज नॉट माइंड। राइट। आपके प्लेटफॉर्म में पहले शायद मैंने बोला कि नहीं बोला कि अगर हम मन का मीनिंग माइंड करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। माइंड इज मेड सब्जेक्ट टू मन गॉट द मैसेज थ्रू द सुर्त। सुर्त मतलब ध्यान।
मन, ध्यान हमारा किस तरफ है? राइट। माइंड, माइंड कहाँ पर है? नो माइंड नहीं 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 नहीं, अभी इतना मन, सिंपल। मन। सुर्त किस तरफ है? सुर्त का एंटेना जो एरियल है वो किस डायरेक्शन में? आप अगर ओल्डन डेज की बात करें, जब दिल्ली में टीवी चलता था, दूरदर्शन या इंडिया में, तो राइट। हमारी छत के ऊपर वो 3 एल्युमिनियम के डंडे वाला एरियल लगा होता। यस, आई रिमेम्बर। वो एरियल हमारे टीवी की स्क्रीन पे मैसेज को विद वीडियो ऑडियो लाने का काम करता। सो जिस डायरेक्शन में एरियल को करेंगे वैसे मैसेजेस वो पकड़ेगा और मेरी टीवी स्क्रीन पे देगा। नाउ आई एम टॉकिंग दैट एरियल के वो उसका नाम है सुर्त, ध्यान। उसने मन को मैसेजेस देने हैं, मन की स्क्रीन के ऊपर सारे मैसेजेस आ गए हैं। ये वाले सारे मैसेजेस मन ने विदाउट फिल्टरिंग, विदाउट एनालाइजिंग दे दिए हैं माइंड को। सो थर्ड एंटिटी कौन सी हो गई? थर्ड टूल क्या हो गया? माइंड। माइंड। ठीक है, ठीक है मीना जी। हाँ जी, हाँ जी। I'm getting distracted with so many people coming in because I have to admit they're all wanting to come in. तो मेरा माइंड उसमें जा रहा है, they're all coming in here. थोड़ी डिस्ट्रैक्शन सी हो रही है, पर I'm listening to you, मैं आपको सुन रही हूँ अभी। अच्छा, अभी तक जो मैंने बोला उसको आप रिपीट करो, नहीं तो मैं फिर उसको क्लियर कर लूंगा ना दोबारा। नहीं नहीं, आप क्लियर करो, आप क्लियर करो, बिकॉज मैं I'm gonna just concentrate on this, not to I'm not entrance आ रहे हैं लोग, काफी लोग। एंटेना, हाँ जी, वो तो मैंने सुना है। हाँ जी, इट्स लाइक एंटेना, तो राइट। आप, हाँ, एंटेना सेट सेट मतलब जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन से वो वेव्स को रिसीव करके, मैसेजेस को रिसीव करके मन को देता है। राइट। मन को पंजाबी में बोलते हैं फुरने दा घर है, हाउस ऑफ थॉट्स है, फुरने आते हैं इसको। ठीक है, राइट। दो हो गए। सो सुर्त, एंटेना, एरियल, उसने जो पकड़ा उसने मन को दिया। मन के पास वो कलेक्टिव एवरेज 60,000 to 65,000 आते हैं। ये वाले सारे मैसेजेस विदाउट एनालाइजिंग के ये गुड है कि बैड है, इन पे काम करना चाहिए, इनमें से नेगेटिव के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, गुड को प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ये वाला कोई भी फिल्टर एनालाइज करने के लिए मन नहीं लगाता, और फिर मन सारे के सारे मैसेजेस माइंड को दे देता है। दैट इज थर्ड एंड ओके। थर्ड टूल ऑफ द बॉडी। हेलो, हाँ जी, हाँ मैं सुन रही हूँ। टूल ऑफ द बॉडी, यहाँ आप टूल ऑफ द बॉडी, यस आई हर्ड यू। मैकेनिज्म समझ रहे हैं ना हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो जो मन ने सारे मैसेजेस प्लस और माइनस माइंड को दे दिए, उस माइंड को हिंदी या पंजाबी में मत और बुद्ध। राइट, मत और बुद्ध। ये जो मत और बुद्ध है ना, ये मत बुद्ध का जो पांडा है, जो मेरी विंडो है एक मत बुद्ध वाली, ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब आज अगर कोई किसी को
इनोसेंट को मार रहा है तो उसकी कुबुद्धि या कुमत काम कर रही है ना, चंगी मत काम नहीं कर रही है, भैड़ी बुद्धि काम कर रही है, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि काम कर रही है ना वीना जी? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। मैं आई अंडरस्टैंड, बिकॉज जैसे आपने बोला है कि माइंड में मतलब कितने थॉट्स आते हैं, लाइक एन एंटेना, कितने थॉट्स आते हैं, एंड ये नहीं कि सारे अच्छे होते हैं, दे ऑल गुड एंड बैड, यू नो, माइंड में नहीं, माइंड में मन नहीं, में मन में मन में बुद्ध में मन, मत और बुद्ध आपने बोला है, हाँ हाँ, बट हम आज the thoughts, the so many, Buddhist mind yeah, which got the messages. right, you catch the messages, it doesn't mean कि सारे अच्छे हैं, you know, like a lot of them are not negative thoughts. So जो से अभी जो हालात हो रहे हैं, those all not a good thoughts जो कर रहे हैं, अपने जो आजकल जो दुनिया में हो रहा है, those are not good thoughts and not good actions जो हो रहा है. That's the thing. That's what I'm understanding what you're saying. जी पर आप जो कह रहे हो, anyway, I'm just going to listening to you, but this is what I'm understanding right now, you know. ठीक है वीना जी, अभी जैसे आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, कोई बीच में आ रहा है, कोई अपनी वीडियो ऑन कर रहा है, कोई ऑडियो ऑन कर रहा है, आपको डिस्टर्बेंसेस हो रही है ना? थोड़ी सी, हाँ, हो रही है ना? तो आपका मन अपसेट है ना स्टिल? नहीं, not really. नहीं, आई एम सॉरी, ड्यू टू दीज डिस्टर्बेंसेस वो फोकस नहीं ना हो पा रहा, जैसे आपने मेरे को बोला कि बड़े सारे ऐसे ऐसे कर ले, मैंने अपने आप सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। नहीं, you're right, absolutely right. थोड़ी distractions से हमारा मन, नहीं, please go ये ahead. डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो इसका मतलब जो सुरत है वो फोकस नहीं हो पा रही है। सुरत जो है, एंटेना एरियल जो है, वो फोकस नहीं हो पा रहा है ना। नहीं, I'm okay now. I'm okay. I'm fine. I'm listening to you now. मेरा फोकस अब यहीं पर है, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही. No, I'm okay. अच्छा, अब हम समझ रहे हैं, रिगार्डलेस आपका प्रोग्राम, रिगार्डलेस मिसिस वीना लांबा या भूपिंदर सिंह या कोई भी, ऑल डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के हम समझ रहे हैं हमारी बॉडी कैसे काम करती है. Exactly, mechanisms, correct. तो हमारा मेन टूल है सुरत, जो कैच करती है सब्जेक्ट टू द डिजायर्स ऑफ द मन, और वो सारी ये सुरत में पॉजिटिव नेगेटिव सब डिजायर्स के थॉट्स आ जाते हैं और ट्रांसमिटेड टू द मत एंड बुद्ध, विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश माइंड. So mind is the subject to man. Mind is subject to man. ठीक है. Mind is subject to man. आपने यही बोला ना? मन. Yeah. And man receiving the messages through sur. Yeah. ठीक है? Yes. Dhyan is antenna. Antenna, yeah. ठीक है? अगर वो वेव्स को फोकस कर दिया जाए तो वो उसका मैसेज पकड़ती जाएंगी ना. बिल्कुल. हाँ जी वीना जी. मैं सुन रही हूँ आपको. I understand now. तो ये जो मैसेज आए, सुरत से आए, ध्यान से आए, मन के पास आए, मन ने मत और बुद्ध मीन्स माइंड को दे दिए. इसका मतलब माइंड वैसे वाला बना जैसे सुरत से मैसेजेस मन के थ्रू आए थे.
फाइन। हाँ नहीं, मैं सुन रही हूँ आपको, आई एम लिसनिंग। अच्छा, आप ये जो माइंड है ना, जिसको मत बुद्ध बोल रहा हूँ, मत बोलिए। यहाँ तक ये सारी इनविजिबल बॉडी है, इनविजिबल, दिखती नहीं। इनविजिबल। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। वी कांट सी मत बुद्ध कैसे देख सकते हैं? वी कांट, इट्स इनसाइड, इट्स इनविजिबल। अब ये जो मत बुद्ध है ना, जो माइंड है, इसने विजिबल बॉडी के ब्रेन को मैसेजेस भेजने हैं, और ब्रेन में अकॉर्डिंग टू दैट केमिकल्स प्रोड्यूस सेक्रेट होंगे। केमिकल्स, गुड केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव वाले, हार्मोन्स कह लो, केमिकल्स कह लो, मेडिकल टर्म्स में जो कुछ भी उसका नाम रखें। अगर वो डिस्ट्रक्टिव है तो हार्ट पंप नॉर्मल नहीं करेगा, कार्डियक। राइट। ठीक है, मैसेजेस जो ठीक नहीं आएंगे, जिसको अफेक्ट ब्रेन और हार्ट ये मेरे बॉडी के विजिबल ऑर्गन्स हैं, जिनको मेडिकल साइंस देख के बता। करेक्ट, आई एग्री, इट कैन अफेक्ट योर हार्ट। So heart pumping belongs to the chemicals being produced in the brain. मेडिकल साइंस वाला ब्रेन है ना। अच्छा, ब्रेन केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, और एंटेना से, सुर्त से, ध्यान से मन ने चाहा था कि ये वाला हाथ यूज करके किसी को प्यार करना है वर्सेस या थप्पड़ मारना। तो ब्रेन इस हाथ को मैसेज देगा टू द ऑर्डर गिवन बाय ब्रेन। थोड़ा फ्रीज हो गया आपका। To enable that work according to the message order being given, पूरा क्लियर? नॉइज आउटसाइड, मैं समझ गई आपकी बात, बिकॉज यू गेट दोस केमिकल्स और हार्मोन्स जो होते हैं, दैट अफेक्ट्स द हार्ट को अफेक्ट कर देगा, एंड दैट्स नॉट गुड। पर वो केमिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं ब्रेन में से, फिजिकल ब्रेन से आते हैं, देन गोस टू द अफेक्ट्स द हार्ट, अफेक्ट्स द हार्ट। बट सारे पार्ट्स को, अगर वो पॉजिटिव वाले हैं या नेगेटिव वाले हैं, सारे पार्ट्स को काम करने के लिए वो बोलते हैं ना। अगर मान लिया मैंने यहाँ पर मच्छर ने काटा और मैंने ऐसे करना है, तो मेरे ये नेल को और नाखून को और इस फिंगर को मैसेज कौन देगा? ब्रेन देगा ना। राइट। दैट मींस ब्रेन ट्रांसमिट्स द ऑर्डर। या पर ऑर्डर देता कैसे है? सब्जेक्ट टू द केमिकल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। केमिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सब्जेक्ट टू द मत बुद्ध, दैट इज माइंड ने ब्रेन को कौन से मैसेजेस दिए। वो वाले मैसेजेस मन से आए थे। मन इज हाउस ऑफ थॉट्स, और उसको सुर्त से आए। जो टर्मिनल इल पेशेंट होता है, आपने हॉस्पिटल्स में देखे होंगे। मान लिया मेरे फादर, वो ही वाज नॉट वेल, तो वो जब कोमा में थे, तो मैं उनके सामने गया, वो मुझको देख के पहचान नहीं पा रहे थे। व्हाट वाज मिसिंग?
ध्यान, सुर and cannot receive, recall, cannot retrieve, ये कौन है? तो उस टाइम सुरत काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ध्यान काम नहीं कर रहा। क्लियर? Yes, yes, yes. सो टर्मिनल इल जो पेशेंट होता है उसका मेन मैकेनिज्म ध्यान आउट ऑफ ऑर्डर। Because he's not getting the proper signals, तो उसको mind he अब cannot. यहाँ पे मैं पॉज कर दूं एक बार, एक मिनट के लिए पॉज करके आपकी आवाज कट गई। मेरी आवाज कट रही है? हाँ जी वीना जी रिपीट अगेन। नो, मैंने ये कहा कि अगर माइंड को सिग्नल ठीक नहीं दे रहा, देन ऑल्सो जो क्या कहते हैं आपने सूरत, यू डोंट गेट सुर, सो यू डोंट गेट सूरत तो फेस होता है, सूरत तो शक्ल होता नहीं सुर मतलब सुर। you don't get the proper signals, then it's going to affect your mind, and you don't get, then you don't recognize वो mind को भी तो affect, then you don't तो मत बुद्ध से वो ब्रेन को मैसेज नहीं गया, अर्थ क्या तो ब्रेन ऑर्डर नहीं कर पा रहा। राइट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं मन मैले सब कुछ मैला, अगर मेरा मन मैला है मीन्स मैलाइन थॉट्स को पसंद करता है, मीन्स नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाता है, अट्रैक्ट होता है, तो उसको मैला मन बोलते हैं, मैलाफाइड मन बोलते हैं। ठीक है। दैट यस, मन मैले सब कुछ मैला, मेरी अंदर की सारी फैकल्टीज, मेरे अंदर के सारे ऑर्गन्स, बीट विजिबल बीट इनविजिबल, सारे खराब हो जाएंगे। मेरा एटीट्यूड खराब हो जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। तो ये जो आज इनोसेंट किलिंग हो रही है, वो कब से उनकी सूरत कौन कौन से मैसेजेस लेके हार्ट और मन के थ्रू मत बुद्ध को देती रही कि आज उनका ब्रेन डिस्ट्रक्टिव एक्शन करके इनोसेंट पीपल को किल कर रहा है। करेक्ट। अच्छा जी, वीना जी यहाँ पे पॉज करके अब हम एक पॉइंट समझे, हमने वाइडली नोन नोशन में अपनी सोच में रखा हुआ है। मैं शेयर, हाँ जी, हमने इसका नाम फेट और किस्मत रख दिया, हमने इसका नाम पामिस्ट्री के हिसाब से रख दिया, हाथ की लकीरों के और किस्मत के भाग्य के हिसाब से रख दिया। अब आप बताओ इसका किस्मत फेट भाग, पिछले जन्म के 100 कार्ड भाग, कर्मों का लेखा जोखा से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो मेरी सूरत, मेरा एंटेना जिधर जाता था वैसे मैसेज लाके मेरे मन को देता था, और मेरा मन एनालाइज करता ही नहीं था, वैसी मेरी मत बुद्ध बन गई, मेरा माइंड बन गया, और मेरा ब्रेन अब मेरी बॉडी से कोई डिस्ट्रक्टिव एक्शंस कराता है। कभी कभी अच्छे काम भी करा लेता है, तो वो तो हिपोक्रेट हो गया ना, ड्यूअल पर्सनैलिटी हो गया ना। तो हम ज्यादातर सारे हिपोक्रेट है, उसको बोलते हैं जियो मैले बारो निर्मल जियो तो मैले, इन्हीं जन्म जुए हारिया। हम अपना सारा जीवन गैम्बल में लूज कर रहे हैं, गैम्बलिंग में लूज कर रहे हैं, और अपने आप को इस इल्यूजन में हम अपने आप को
मिसगाइड कर रहे हैं कि ये पिछले जन्म के भागों के कर्मों के माथे लिखे भागों के हिसाब से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बचपन से मेरी सुर्त जिस तरफ जाती थी, जो मैसेज लेके आती थी, मेरा हाउस ऑफ थॉट्स में वो जाते थे, वैसी मेरी मत और बुद्ध का कारण मेरा ब्रेन आज काम करता है और मेरी बॉडी से कराता है। ऐसे कई लोग हैं, there are some people you do that कि भाई मैंने तो ये तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैंने क्या कर दिया, just something wrong, बाद में कहते मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या किया, I don't remember anything। वो तो सो रहे हैं ना, जो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं चला क्या कर रहे हैं, वो तो सो रहे हैं ना। अगर मान लिया वीना जी आपका ये इतना ग्रेसफुल, इतना हाई फाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने लोग सुन रहे हैं, ये इतने अच्छे पेडेस्टल पे, अगर मैं अब्यूजिव लैंग्वेज शुरू कर दूं और बाद में मैं कहूं वीना जी आई एम सॉरी, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, इसका मतलब मैं सो रहा था। मैं समझ गई, I know that's true। वो तो सो रहे, उनका मन सोया हुआ है जो ऐसे करते हैं जी, पता नहीं क्या हो गया अचानक हो गया मेरे से, वाई हो गया, वाई यू आर सो अनअवेयर। अगर ऐसे करते रहेंगे तो लोग सड़क पे कार चलाते रहेंगे, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट दुखी हो जाएगा, जेड़ा आएगा किसी को टक्कर मार देगा जी अचानक हो गया जी मेरे से, तो ऐसे होगा क्या? फिर तो दुनिया का जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो सारे सिस्टम जितने बना हुआ वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जो मन मतलब जो तो आप जी नहीं पता नहीं, आप पता हो, मैं कहने लगी थी कि दैट मींस माइंड में जो ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स, क्या ये जो करते हैं लोग, गलत बातें करते हैं, इनके माइंड में, मन में बातें ऐसी आती हैं, देन दे कहते हैं थॉट्स एक्शन, फिर ऐसे ही डायरेक्ट एक्शन होता है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ये सब बहाने हैं कि मुझे पहले ज़माने का, I don't believe in that। I don't believe in that also। They know what they're doing। सबको पता है क्या कर रहे हैं। अगर एक लड़की, अगर एक लड़की की शादी की जाए और उसके ससुराल वाले उसको बर्ट लाइव कर दें, जला दें दाज के नाम पे, तो ये पिछले जन्म की किस्मत कहते हैं इसको, या उनका ब्रेन काम ही ऐसे करता है क्योंकि उनका माइंड बना ही ऐसे था, क्योंकि उनकी सूरत हमेशा डाउरी की तरफ जाती रही, उनकी बेटी लेके आई है, उनकी बहू लेके आई है, उनको फरारी मिली है, उनको सोना मिला है, उनको डॉलर मिले हैं, तो क्या ये हम उस डब्बे में डाल सकते हैं कि अगर एक लड़की को जला दिया जाए तो? नहीं, ये किस्मत की बात नहीं चल रही, ये भागों की बात नहीं चल रही, ये मैन काइंड का कैंसर है दिमाग में, सोचने का ढंग, मन मैला है, मन भूखा है, भूखिया भूख ना उतरी। जो भूखे होते हैं ना उनको रोटी दो तो उसकी भूख उतर जाती है, पर जिसका मन भूखा है उसको नहीं कभी भूख उतर सकती। बिल्कुल ठीक बात है, 100% राइट। मन मैला, मन सो रहा है, मैला, मन मैले, सब कुछ मैला, सारी फैकल्टीज खराब। मैं आंखों से देखता हूँ पर डिस्क्रिमिनेटिव आंखों से देखता हूँ, ब्लर्ड आंखों से देखता हूँ। डॉक्टर ने मेरे को 2020 का लाइसेंस में दिया हुआ है देख के, पर यहाँ से मैं लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करता हूँ, तेरा मेरा अपना पराया करता हूँ, देसी परदेसी करता हूँ। जब हम देसी परदेसी करते हैं तभी बॉर्डर्स बनते हैं, और तभी तो फिर बॉर्डर्स के आर पार वाली लड़ाई शुरू होती है ना। तो बॉर्डर तो किस्मत ने नहीं बनाए, बॉर्डर तो गॉड ने नहीं बनाए, ऐसे ही शादी भी गॉड ने नहीं बनाई। ये गलत स्टेटमेंट है कि हम सबकी शादियां हेवन में लिखी जाती हैं, ऊपर लिखी जाती है। वाह जी वाह, ये कहां से बात आ गई, ऊपर लिखी जाती है। और फिर एक स्टेटमेंट शुरू कर दी, जोड़ियां जग थोड़ियां और नरण बतेरे। भाई वो थोड़े से कपल होते हैं जिसके आपस में बनाते, बाकी से सारे लड़ते रहते हैं।
तो ये किस्मत की बात है? नो, ये पिछले जन्म के माथे लिखे भागों की बात है। नो, इसका मन ने जैसा बचपन से सुर्त के थ्रू मैसेजेस इकट्ठे किए हैं वैसी पर्सनैलिटी बना है, और उन दोनों का क्लैश होता है। अगर उनको आपस में शेयरिंग करनी आती है तो ठीक है, वरना वो उनकी इंक्लिनेशन नहीं है। ये किस्मत का, और कहीं ऊपर आसमान पे तो रिश्ते लिखे नहीं जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही वेग सी एक थ्योरी का स्टेटमेंट दे दी अपनी, अपने आप को एस्केप करने के। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है ना, ये वही स्टेटमेंट है। ओ जी, भगवान ने बनाई है, गॉड ने बनाई है ये शादियां, हम क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, तो लड़ सकते हैं। और अगर पति पत्नी लड़ पड़े और उनको एक बंदा आके बता दे तुम नीला पत्थर पहन लो, तुम लाल पत्थर का रिंग पहन लो, तो लड़ाई खत्म हो जाएगी उनकी। सुपरस्टिशियस बिलीफ है ना। फिर एक और सुपरस्टिशियस मैन आ गया जिसका नाम तांत्रिक रखा हुआ है। वो आके बोलता है तुम्हारी पत्नी को किसी ने कुछ किया हुआ है। किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा, वो मेडिकली अनफिट है या क्या मिसकैरेज होता है, उसको बोल दिया इसको भूत चिपटा हुआ है, आत्मा ने इसको इसके वूम्ब को बांझ किया हुआ। ये सारी बातें, अगर पति पत्नी का झगड़ा है और कोई किसी को बोले तुम अपने ड्राइंग रूम की विंडो उधर से तोड़ के इधर बना दो और बेडरूम का जो बेड है वो हेड इधर से इधर कर दो, झगड़ा ठीक हो जाएगा? नहीं। तो हम इन्हीं सारी गेम में हमको ये तो समझ नहीं आ रहा हाउ माई बॉडी वर्क्स। माई बॉडी वर्क्स सब्जेक्ट टू माई सुर्त ब्रिंग्स द मैसेजेस फॉर द मन। क्लियर? यस। अच्छा, सोल्यूशन है कि एंटेना तो कोई भी मैसेज पकड़ लेगा, सब्जेक्ट टू द डिजायर्स ऑफ द मन, है ना? यस। पर अगर ये मत बुद्ध को, माइंड को फिल्टर करके देगा कि गुड शिपमेंट्स आगे भेजनी है और बैड शिपमेंट्स नहीं भेजनी, रॉन्ग शिपमेंट्स नहीं भेजनी। करेक्ट। गुड बॉक्सेस कोरियर में आगे भेजने हैं मत बुद्ध के अंदर, माइंड के अंदर, और रॉन्ग बॉक्सेस की सारा माल यहाँ पे इकट्ठा कर देना, आगे नहीं भेजना। जो अनआइडियल है, अनएथिकल है, मेलाफाइड है, डिसीटफुल है, वो डब्बे आगे नहीं भेजने, वो आगे एक्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक है? एनालॉजी ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो वो जो मत और बुद्ध में पॉजिटिव 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 डब्बे जाएंगे सारे, उनसे तो ब्रेन फिर पॉजिटिव काम करेगा, पॉजिटिव केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, तो मेरी पर्सनैलिटी पॉजिटिव बनेगी, स्पिरिचुअल बनेगी, आइडियल बनेगी, डिवाइन बनेगी, मेरे एक्शंस वर्च्यूज वाले होंगे, आइडियल होंगे। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? एंटेना को थोड़ा चेंज कर दो, देन दिस गुड थॉट्स विल कम इन, राइट? यही है ना सारे? अभी देखो को आ रहा है। अभी एक पॉइंट तो रह गया ना कि वो नेगेटिव शिपमेंट्स वाले डब्बे कहाँ गए? आगे वही ना। सो नेगेटिव शिपमेंट्स वाले डब्बे जो चले गए। एनालाइज करके भेजे थे ना आगे पॉजिटिव दे दिए, और यहाँ पे नेगेटिव इकट्ठे होते गए, तो यहाँ पे सारी बेसमेंट ही भर गई, जगह ही नहीं है। तो मन अपनी सुर्त को फिक्सअप करता है और उसको बोलता है इन फ्यूचर डोंट सेंड मी द नेगेटिव बॉक्सेस।
Yes. They have occupied the whole space in my basement and we don't have any space. In future, don't send us the negative thoughts. Hmm. ठीक है? ठीक है, बिल्कुल. I understand. अच्छा, अब मैं इसको कॉमन मैन की लैंग्वेज में लेके आऊं कि अगर मैंने टीवी पे देखा, सीरियल पे देखा, फिल्मों में देखा, न्यूज में देखा, मीडिया में देखा, या मैंने लोगों में देखा और मेरी सुरत ने नेगेटिव वहां से पिकअप कर लिए, तो बॉक्स सारे आ जाएंगे ना फिर मेरे घर. Oh. इसका मतलब ये हुआ कि हमको बैड थॉट्स की कंपनी से अपनी सुरत को शिफ्ट करना. बीट सीरियल, be it news, be it people, be it the negative thoughts of the people, be it negative practices of the people, evil thoughts being practiced by the people. तो उससे अपने एंटेना को हमने शिफ्ट कर लिया है ना. तो इसको सिंपल सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं, मन फुरनेदा कार है, हाउस ऑफ थॉट्स है. सो जैसे फुरने आते हैं वैसा करेक्टर बन जाता है. वो पूरा मैंने ट्रैक आपको सारे बॉडी के टूल्स का ट्रैक बना लिया और अकॉर्डिंग टू दैट सारा सिस्टम बॉडी का चलता है और हमारा करेक्टर बनता है. एंड वी बिहेव इन द सोसाइटी एंड वी मूव अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स के डब्बे वापस करते रहेंगे, आस्ता आस्ता सारी सूरत पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो अब नेगेटिव बॉक्स वाले ख्याल आते ही नहीं है, भैड़े फुरने आंदे ही नहीं ने, सप्रेस नहीं करने पड़ते. You got it? इनिशियली हम लोग सप्रेस करते हैं जब हमने बॉक्सेस को वापस किया है. नेगेटिव बॉक्सेस को वापस करना इज इक्वल टू सप्रेस करना. नो, आई डोंट वांट दीज बॉक्सेस. मेरे को लस्टी फीलिंग आई है या किसी का कुछ डिस्ट्रक्टिव करने की फीलिंग आई है या किसी की इज्जत खराब करने की फीलिंग आई है या किसी की बैक बाइटिंग करके, लेग पुलिंग करके डिफेम करने की फीलिंग आई है. ये बॉक्सेस रॉन्ग है. मेरे को ये थॉट्स नहीं चाहिए. ओ माय सुरत, ओ माय ध्यान, oh my antenna, oh my aerial, oh my radar, don't send me these boxes, these messages ever. इसको बोलते हैं you got the wisdom. देख फ्रीता ज्योतिया दाढ़ी हुई पूर. पूर मीन्स कंचन वर्गी, सोने वर्गी हो गई. नाउ you are man of wisdom. And agga neda aya pichha reya dur means you got the time to have oneness with God while living, because your antenna does not receive any negative messages and your man has filtered नेगेटिव थॉट. बिल्कुल ठीक. मतलब खुद कर सकते हो. You have to take control of your mind to do that. Yes. Right? इसके लिए कोई ऊपर पावर नहीं बैठी हुई जो दिखती नहीं है, कोई ना ब्लेम नहीं कर सकते. Almighty God रखा हुआ है, वो कोई can't blame God. No, you can do it yourself. अपने पावर खुद ही कर सकते हो चेंज. अपने आप में, अपनी बॉडी में नेगेटिव निकालो. जो मेरी बॉडी के अंदर जो पावर्स है ना, ये इसी को गॉड बोलते हैं. ये जो पावर्स है, ये जो मैकेनिज्म है, यही एक ओंकार, मेरे एक एक रोम रोम, एक एक अंग के ऊपर ये वाला सच का नियम चल रहा है. दैट्स हाउ द बॉडी वर्क्स. देखो, ऊपर वाले ने हमको नॉलेज दी है, ये तुम कर सकते हो. ही इज द वन हु टोल्ड अस एंड ही वांट्स अस टू डू इट आवरसेल्फ, नॉट ब्लेम. उनको ब्लेम, व्हाई टू ब्लेम हिम? खुद उन्होंने नॉलेज दिया, ऐसे कर सकते हो. व्हाई डोंट यू डू इट योरसेल्फ? You should do it yourself. You have the knowledge to do it. This is what I think. कि ऊपर वाले जो हमको सिखाते हैं अच्छी चीजें, why to blame him? He's telling us what to do, teaching us, taught us already.
whatever, you know, those things. पर हमने तो सारा उसमें डाल दिया ना, पिछले जन्म की हाँ, वो तो किस्मत, फिर भाग, मत्थे भाग, की रेखा और कर्मों का फल, उसमें डाल के हमने अपने को मिसगाइड कर लिया ना। और फिर कहना शुरू कर दिया जैसे गॉड कराए वैसे हमारे भी बस में क्या है, गॉड जैसे कराता। कितनी हिपोक्रेसी है, करता तू है, सुरत तेरी काम नेगेटिव लेके आती है डब्बे, बेसमेंट तेरी भरी हुई है मैल दे नाल, गंदे डब्बों के साथ, और ये डब्बे तू आगे ब्रेन में भेजता है, वहां से केमिकल डिस्ट्रक्टिव पैदा होते हैं। तू रात को सो रहे, कोई बच्चों के ऊपर बम मार के उनको मार देता है, तू डिस्ट्रक्टिव काम करता है, इनोसेंट बच्चों को सोते सोते मार देता है, लाखों बच्चों को मार देता है। क्यों भाई? ये ना दोस्त द पीपल वो सारे वो चीज ये नहीं करते ना, दे हैव, उनका भरा हुआ है घर नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिविटी से, रात दिन यही तो करते हैं, दिस इज व्हाट दे डू, एंड देन बिकम्स लाइक वॉर। अगर क्लियर करें तो नहीं होगा ये, पर उनको नेगेटिव यही चीजें पसंद है, दिस इज व्हाट दे डोंट हैव टाइम, दे डोंट वांट टू डू इट, क्लियरेंस करते नहीं, नेगेटिव थॉट्स भेजते नहीं है, रखे हुए हैं, यू नो, दैट इज व्हाई एक्शंस ऐसे होते हैं। सो ऐसे मतलब अच्छा, अगर कोई धार्मिक स्थान पर, किसी भी धार्मिक स्थान पर अगर कोई बोलता है फलाने वाला पाठ करने से आपको पुत्र मिलेगा, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा मंत्र और जगह नहीं है जहाँ पे कुड़ी मिलेगी। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिखाई, ये नेगेटिव थॉट है ना, ये अपने आप में एक टेररिज्म है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, 100%। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने आसपास भी तो हम ये सारे नेगेटिव सीखते जा रहे हैं ना, कि इन्हों के घर पुत्र है, बड़ी बख्शिश है, बड़ी कृपा है, इनके घर 3-3 4-4 पुत्र हैं। अच्छा, जिसके घर 3 बेटी होगी उसको कृपा बख्शिश नहीं है क्या? क्यों बेटी के पुत्र के टाइम तो बोल दिया बढ़िया बधाइयां बधाइयां बधाइयां, और बेटी के टाइम पे बोला चलो कोई बात नहीं घर में लक्ष्मी आई है ना। अच्छा, क्यों उसके टाइम बधाई क्यों नहीं? वो भी वही इक्वली ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल, ये इसके कारण फिर फीमेल फीटिसाइड किलिंग। नहीं, मैं ये कह रही थी कि नेगेटिव जो लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे बात उनका माइंड ऐसे ही चलता है नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने अपना निकाला नहीं हुआ माइंड, बिकॉज ओपन माइंड करें तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। बच्चा कौन सा हुआ, बच्चा बच्चा होता है, लड़का है या लड़की जो भी है, इट्स अ बेबी, यू नो, बट जिसकी थॉट्स तो ऐसे। अगर फिल्म या सीरियल या मैगजीन में, फिल्म्स या सीरियल्स या मैगजीन्स में कुछ ऐसा दिखाया नेगेटिव, तो मेरा एंटेना तो फिक्स होना चाहिए ना कि मैंने ये रिसीव नहीं करने हैं बॉक्स, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। देखो, कोई ऐसा काम करे, you should not be in that, you should not get influenced by what the other person is doing. You have to use your own power and your own mind, and अपना नेगेटिविटी निकालो, दूसरा को कर रहा है ट्राई टू चेंज, बट उस पर डिपेंड करता है कैसे मैं चेंज करूं, पर अपने को तो करो ना, अपने आप को ठीक रखो, ट्राई टू डू एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ, अपना निकालो, यू नो। तो अब हम सम अप करने के लिए पहले मैं आपसे सुन लूं कि वो क्या है, वन बाय वन, हाउ बॉडी वर्क्स। मैं आप मेरे से नहीं आप तुम्हारा एक एक करके I will go through all the points, but I understand. First tool being fixed, and since we are born वो हमारी बॉडी में फिक्स है, एंटेना, antenna जिसका नाम है ध्यान, सूरत, या उसके थ्रू हाउस ऑफ थॉट्स मन के पास मैसेजेस आ गए। मन इसने वो पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज आए थे, इसने ये मत बुद्ध को दे दिए, उसको माइंड बोलते हैं। मत बुद्ध, यस। ये सारे पार्ट्स इनविजिबल हैं। इन्होंने विजिबल पार्ट ब्रेन को मैसेज भेज दिए, प्लस और माइनस, करेक्ट।
Yes. और ब्रेन फिजिकल ऑर्गन है, इसलिए ब्रेन ने फिजिकल लेवल पे, मेडिकल लेवल पे, बायोलॉजिकल लेवल पे हार्मोन्स या केमिकल्स प्रोड्यूस कर दिए, बॉडी ने वैसे वैसे एक्शन करने शुरू कर दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। और हार्ट अकॉर्डिंग टू दैट पंप करता है। अगर ब्रेन ब्रेन को डरने वाले, लड़ने वाले, रेप करने वाले, गलत गलत बैंक लूटने वाले गलत गलत मैसेजेस गए हैं ना, तो हार्ट का पंपिंग चेंज हो जाएगी, हार्ट एनलार्ज होने लगेगा। तो द विजिबल बॉडी इज अफेक्टेड बाय द इनविजिबल बॉडी। इस इनविजिबल बॉडी को धर्म पकड़ता है, धर्म इसको समझता है कि यू हैव टू फिक्स अप योर मन। अगर हम नेगेटिव मैसेजेस को सुर्त से ना लाएं, मीन्स यहाँ पे फिल्टर कर दे और अपने मत बुद्ध को, माइंड को ना दें, तो ब्रेन को सिर्फ पॉजिटिव केमिकल्स जाएंगे और फिर बॉडी पॉजिटिव पॉजिटिव एक्शन किया करेगी। तो हम उसको किस्मत, फेट, मत्थे लिखे भाग, पिछले जन्म के कर्म सबसे छुड़ा के अपने आप को फ्रेश माइंड से सोचेंगे कि आई शुड वर्क ऑन पॉजिटिव ओनली। पॉजिटिव शिपमेंट्स को मैंने ऑर्डर करना है सूट के थ्रू, पॉजिटिव शिपमेंट्स को मैंने अपने लिए और मेरे समाज के लिए और सोसाइटी के लिए यूज करना है। ठीक है, वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आपने एक एक स्टेप का स्टेप अपना एक्सप्लेन किया है। आई एम डन। योर क्वेश्चन, थैंक यू। नहीं, बहुत नहीं, आपने बहुत योर अच्छा। क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, वेरी वेल वो लिख रही है, कमलेश जी लिख रही है, परफेक्टली एक्सप्लेन बाय डिटेल्स। मेरा 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 फ्रेंड जुजार आ गए हैं। मैंने उनको बोला था इसके ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाया था मेरे फ्रेंड पुष्पिंदर सिंह से मिलके, मैं चाहूंगा कि हम आपको वो डायग्राम दिखा देते हैं। हाँ, यू जस्ट सी दैट डायग्राम, सी ऑन द स्क्रीन। इसको एनलार्ज, वी हैव टू एनलार्ज इट। ओके, मैं इसकी फोटो लेती हूँ या डिवाइन मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो सुर्त ध्यान एंटेना मैंने बनाया, जो हमारे घर के बाहर हम देखते हैं, वो बड़ा सा एंटेना लगा होता है, और एंटेना लेके आता है हाउस ऑफ थॉट्स के पास। ये सारे प्लस माइनस मैसेजेस हैं, इसने मत बुद्ध माइंड को दे दिए, और मत बुद्ध माइंड से मेरा नॉलेज और इंटेलेक्ट वैसा बन गया, उसने मेरे फिजिबल बॉडी के ऑर्गन को दे दिए, और मेरा ब्रेन वैसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, उसका मेरी पूरी बॉडी पे एक्शंस के टाइम मेरे हार्ट के ऊपर इफेक्ट। oh wow, very 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 nicely done. Consciousness, house of thought. एंड यस, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक तो हमारे लिविंग ट्रेजर की बच्ची है जिसने पीएचडी किया ह्यूमन साइकोलॉजी में, वो टेनेसी में इस टाइम प्रोफेसर है, और उसके अलावा न्यूयॉर्क में न्यूरो स्पेशलिस्ट नोन है डॉक्टर अवतार सिंह जी। अच्छा, मैंने उन दोनों से और कार्डियक के डॉक्टर से, और मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर जितेंद्र सिंह सानी, ये 5 डॉक्टरों के साथ मैंने ये डिस्कस किया, एंड दे सेड वाओ दिस इज समथिंग न्यू फॉर द होल। इट इज वेरी यूनिक। तो आपने जो बना इलस्ट्रेशन भेजी है, जो भेजी है, वेरी, तो ये किसने बनाई है? Who made this thing? क्लियर? दिस इलस्ट्रेशन ये किसने बनाई है? ये जैसे मैंने शेयरिंग की मेरे फ्रेंड पुष्पिंदर सिंह के साथ, तो अब इसका सोल्यूशन पार्ट, ये सोल्यूशन पार्ट इसकी पिक्चर नंबर 2 है। सोल्यूशन पार्ट में फिल्टर लगा दिया, जिसको डिवाइन बोलते हैं, विवेक बोलते हैं। ये बीच में लग गया ना जो फिल्टर, अब फिल्टर करके मत बुद्ध में ओनली पॉजिटिव जाती है। एंटेना तो पकड़ लेगा, लेकिन मन के पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, अक्ल आ गई है मन को एनालाइज करने की, फिल्टर करने की, उसको विवेक बुद्धि बोलते हैं। विवेक,
डिवाइन इंटेलेक्ट, ये माला फेरने से, चौकड़ा मारने से, 4 घंटे मेडिटेशन करके और यहाँ पे मत्थे पे ध्यान टिकाने से नहीं आएगा। ये घर गृहस्थी को छोड़ के, सोना पैसा चांदी कामों को छोड़ के और पहाड़ी पे चले जाने से काम नहीं आएगा। ये सेलिबेसी में रहने से काम नहीं आएगा। ये खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि फिल्टर मैंने लगाना है। बिल्कुल। रिनाउंसिंग कुछ नहीं करना पड़ेगा, सप्रेस कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिल्टर लगाया, ओनली पॉजिटिव मैसेजेस, दैट्स ऑल। किसने ये क्वेश्चन किया है कि then how can we explain what is religion? What is religion? How ये can ये we ये explain? अगर ये हम कहते हैं भी हमारा ये तो किस्मत में था, हमारा तो ये पिछले कर्मों का ये हो रहा है, तो वो तो फिर with this thought process that is out, that's not there. तो उनका मतलब ये है कि religion कहाँ से किस तरीके से आएगा? How can we explain about religion in this whole scenario? पहले हम एक सब्जेक्ट क्लियर कर लें कि डिक्शनरी में रिलीजन का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डूज और डोंट्स वाला जो होता है, वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट ग्रुप्स का, उसको दुनिया रिलीजन समझती है। उस रिलीजन की बात नहीं होती। वो वखरे मजहब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये उनकी बात नहीं चलती। ओके, सो पूरी दुनिया में एक ही रिलीजन होता है, वो ये होता है कि तेरे अंदर ये डिवाइन चिप फिक्स्ड है, इसको यूज किया कर। अगर तू रियलाइज करता है कि तेरी पर्सनैलिटी स्प्लिट पर्सनैलिटी है, तेरी पर्सनैलिटी अगर हिपोक्रेटिक है और तू लेग पुलिंग करता है, डिस्ट्रक्टिव करता है और पॉजिटिव काम नहीं करता है, और छोटी छोटी बात पे तेरा मन अपसेट हो जाता है, तो अपना ये फिल्टर यूज कर ले। दिस इज रिलीजन। रिलीजन फिक्सेस अप माय एटीट्यूड, रिलीजन वर्किंग। religion fixes up. कहीं जाना नहीं है, कुछ खाना पीना वाली बात नहीं चल रही, ना किसी को कुछ खाने पीने को देना है, ना कोई प्रसाद कहीं चढ़ाना है, ना कहीं किसी तीर्थ पे जाना है। एक जगह रविदास जी बोलते हैं, धूप दीप नहीं भेद है बादशाह, कैसे पूज करे तेरी दासा, मुझे तो कोई प्रसाद चढ़ाना आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना आता, तो क्या करूं। तो वो बोलते हैं तन मन अर्पो पूज चढ़ा दो। मैंने अपना आप सरेंडर कर दिया ये फिल्टर के आगे कि नेगेटिव शिपमेंट्स वापस, पॉजिटिव शिपमेंट्स फॉरवर्ड, और मैंने ये सरेंडर कर दिया। यही प्रसाद चढ़ाना है, यही पूजा है, यही वर्शिप है, यही रिलीजन है, और इसने मेरे को फिक्सअप कर दिया। आई एम गुड फॉर गुड, अदरवाइज गुड फॉर नथिंग। This is what practical religion ये है, but बाकी जो पाठ पूजा जो करते हैं, that's everybody is different, everybody is अपना अपना जो मजहब है उसमें करो, but this is basically वो भी सिखाएगा यही है। वही मैं कह रही हूँ, सारे रिलीजन वीर जी, सारे रिलीजन नहीं सिखाते रहे। दिस इज व्हाट दे टीच यू। ध्यान करो ना, सारे रिलीजन सेम होते हैं, लोगों ने डिफरेंट पीपल लाइक टू डू देयर ओन थिंग। बेसिकली यही सब दिस इज द रिलीजन दे टीच यू। यही सब यही सिखाते हैं। आप कोई समझने ना समझे, इट्स अप टू देम, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन। सबको नॉलेज है जो मिली हुई है, सबको जब बच्चा पैदा होता है सब कुछ समझ आ जाती है। दे नो, दे गेट ऑल द नॉलेज फ्रॉम ऊपर वाले से। हाउ दे यूज इट, दैट्स व्हाट द की इज। एंड दिस इज जो आपने जो फॉर्मूला बताया है, अगर सब ऐसे करें तो ये सब वॉर वूर तो कुछ होएगा नहीं, कुछ भी नहीं होएगा। बट वो ये ना कि फिल्टर नहीं करते, या दे डोंट वांट टू गिव अप द बैड थॉट्स। So unless we practice that, yeah, knowledge zero, galat hai. Correct. So I just want to ask, anybody has any questions? So summary is to be good and help others. Yeah, correct, that is true. कमलेश जी, अपने आप को थोड़ा
जैसे वीर जी ने समझाया है, वो फॉर्मूला मेरे पास फोटो है, मैं आई कैन फॉरवर्ड इट टू यू, मैंने पिक्चर ली है, प्लस यू गॉट ऑल द स्टेप्स दैट यू जस्ट टॉट अस, एंड देन उसको फॉलो करो, वेरी प्रैक्टिकल। सो वीर जी बहुत अच्छा आपने सम अप किया, एंड यू एक्सप्लेन्ड सो वेल, एंड शैली जी भी कह रही है वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड सब थैंक्स कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आए हैं, आई वांट टू थैंक एवरीबडी हु इज़ हियर टू लिसन टू दिस। वीर जी के इतना अच्छा उन्होंने सिखाया हमको अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ लाइफ, हमारे ब्रेन की, माइंड की मैकेनिज्म्स, यू नो। So we have to introspect ourselves 24/7 और अपने मन को रीड करते रहना रिलीजन का पहला स्टेप है। तो मैंने एक और क्वेश्चन, उसमें से नेगेटिव बॉक्सेस आउट करते जाना। माय क्वेश्चन इज, मेरे मतलब, तो दिस शुड बी डन एवरी डे, अपने माइंड, अपने आप को रोज करना एवरी चाहिए, मोमेंट करो, नेगेटिव थॉट निकाल ही जाओ। अवेयरनेस, हाँ, ऑलवेज अवेयरनेस। अगर उठते बैठते जागते सोते बातें करते और चलते फिरते हर टाइम अगर ये अवेयरनेस है ना, तो हम जाग रहे हैं, मेरी समाधि में है, और एंड वी आर वन विद गॉड, क्योंकि हमारा फिल्टर काम कर रहा है और मैं हर टाइम अपने आप को रीड कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे को सुबह कुछ घंटे चौकड़ा मार के बैठना नहीं पड़ता, किसी खास कमरे में चारों तरफ से बंद करके चौकड़ा मार के हर टाइम उठते बैठते समाधि में है, because I'm analyzing my thoughts, I'm in samadhi, I am one with God, my filter is working, my chip is working। उसको कहते हैं अवेयरनेस। लोयन सुर्त करे, सुर्त वाली आंखें, एंटेना, नेगेटिव नहीं पकड़ता। तो अपने आप को प्रैक्टिस करो, एंड यू विल डू इट, आई एम श्योर। विनय, थैंक यू सो मच, इतने सारे फ्रेंड्स आ गए हैं। देखो मान लिया अगर आप मेरी आप वीना जी, एक एग्जांपल बनाता हूँ। मान लिया आपकी दो बहनें हैं, एग्जांपल वीना जी। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। मान लिया आपकी दो बहनें हैं और आपको किसी ने, जो आपकी पूरी फैमिली को जानता है, उसने आपको मैरिज के लिए कार्ड भेजा और वो दोनों बहनों के साथ भी इक्वली उनकी जान पहचान है, पर उनको नहीं भेजा, कार्ड नहीं भेजा और इनवाइट नहीं किया, पर्सनल फोन नहीं किया, उनके घर जाके मिठाई का डब्बा देके इनवाइट नहीं किया। तो आपकी बहनों का अगर सुरत नेगेटिव काम कर रही है तो कहेगी हमको तो बुलाया नहीं, हमें तो कार्ड दिया नहीं, हम तो जाएंगे नहीं, हमसे तो ऐसे करते हैं, हमने तो उनको बुलाया था। ये वो सारा पुआड़ा शुरू हो जाएगा, नर्क शुरू हो जाएगा ना सारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुरत नेगेटिव पासे जान नहीं देनी। पता लग गया तो हम भी चल पड़ेंगे, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं। अगर वो कहेंगे हाउ डेयर यू कम हियर, तो हम वापस आ जाएंगे, हम उनको कांग्रेचुलेट करके घर आ जाएंगे। ये पता है, मैं जानती हूँ किसके हो चुका है। आई नो समबडी, दिस इज हैपेंड। रोज होता है, हाँ, हमारे सबके घर में रोज होता है। हाँ, सानू नहीं बुलाया, सानू भी क्या, मैनू नहीं बुलाया, तोनू बुलाते ने, ये है वो, ये होता है ना नेगेटिव। बहुत सुरत नेगेटिव पासे गई, नर्क शुरू। ये तो है। हाँ, पार्टी में नहीं बुलाया, इसको बुलाया, मेरे को नहीं, दैट इज एवरी डे, ये तो होता है, ये तो रोज की बात है। अरे जब बुलाया था तो एक और चक्कर शुरू हो गया, सानू कॉफी नहीं मिली, वो कहते नहीं, सानू आइसक्रीम नहीं मिली, एक और नया चक्कर शुरू हो गया, क्योंकि सुरत हमेशा नेगेटिव पे जाती है। इसका मतलब एवरी मिनट, बिल्कुल आपने ठीक बोला है, एक दिन में भी नहीं, एक घंटे के अंदर भी नहीं, एक एक मिनट के लिए इसको फिल्टर करते जाओ, नहीं तो फिर एक दिन के बाद तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, सुनने, यू नो, लाइक सो मेनी थिंग्स इन 24 आवर्स। लोयन सुरत करे, अपनी आंखें सुरत अपनी जागने वाली बना ले, अवेयरनेस वाली बना ले। नानक कैसे आने इन कंत मिला हो, यू आर वन विद गॉड, यू आर वन विद गॉड, यू नेवर पिक अप नेगेटिव्स, यू आर कर्ता पुरख, यू आर क्रिएटिव।
अवेयरनेस है भाई। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया अभी, वेरी प्रैक्टिकल, एवरीबडी हैज गॉन थ्रू दैट वन, आई नो कि बिल्कुल। तो उसको फिर नहीं नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं बुलाया तो नहीं, ठीक है। और आपने भी वो भी बोला ठीक, जिसको बुलाया वो भी कहते हैं मुझे ठीक चाय नहीं मिली, मुझे ठीक तरह आइसक्रीम नहीं पूछी। तो माइंड मन नो सेटिस्फाई कितने कितने करो, यू नो। सब कुछ मिल गया तो लेग पीस नहीं मिला। इस हाँ, चलो उसको चाय पूछी मुझे, चलो आई मीन दिस देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, ये तो फिर चलती जाएगी, दिस थिंग विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ऐसी बात तो एवरीडे की बात है, यू हैव टू तो पुट इट। सारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर। मेरी सूरत का उसी टाइम सारा टेस्ट हो जाता है। सूरत किधर गई है भूपिंदर सिंह जी, ਤੁਹਾਡੀ साथ के साथ फैसला हो गया, ये मरने के बाद नहीं होगा, ये अभी हो गया, ये डिले नहीं होता है। तुम अभी नर्क में पड़ गए हो, तुमने नर्क में अपने आप को आप डाला है, क्योंकि तुम्हारे को आदत पड़ी हुई है सूरत को नेगेटिव साइड ले जाने की, तो डाल लो, कर लो, इट्स योर चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ नर्क से कोई नहीं ਕੱਢ सकता जी, ਤੁਹਾਡੀ चॉइस है नर्क, ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगता है नर्क। आपने एक वो जोक सुना है कि जो पति ने बोला था पत्नी को कि भाई शाम को 6 बजे तैयार है ना, हमने पार्टी में जाना है। नहीं, हमने फिल्म देखने जाना और टाइम पे पहुंचना होगा, मैं आऊंगा, नीचे बेल करूंगा और तुम एकदम से नीचे आ जाना। तो पत्नी आ गई, तो एग्जैक्टली टाइम पे वो नीचे आ गई। तो इसने बोला विंडो किचन की लॉक कर रही थी, हाँ। फ्रिज बंद कर रही थी, हाँ। गैस ऑफ कर रही थी, कहती हाँ। अच्छा वो पीछे जो किचन के विंडो थी वो भी बंद कर रही थी, हाँ। ये कर रही थी, वो कर रही थी, अच्छा अलमारी को ताला मार रही थी, हाँ। अच्छा डोर चेक कर रही है ना, फाइनल बंद कर रही है ना, हाँ। वो सारी बातें पूछता गया, तो पूछता गया, तो वो हाँ हाँ करती गई। तो जब तक वो पिक्चर हॉल पहुंच रहे थे, वो कहती है तुसी इस तरह क्यों पूछ रहे हो। कहता है जे सारे ही काम कर रही है तो कौन सी टेंशन लेके फिल्म देखूं। ओह जे ਤੁਹਾਨੂੰ स्वाद आंदा है टेंशन लेके नर्क लेके तो फाइन, इसके साथ देखो, मजा करो। इसमें मौज नहीं है, अपने आप को कंडा चुबा रहे हो, गलतफहमी है तुमको कि तुम्हारी मन मर्जी चल रही है ना। तो आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। एक बंदा ड्राइव कर रहा था और उसकी वाइफ पूछती है आप इतनी तेज ड्राइव करते हो, आपको डर नहीं लगता। मेरे को तो डर लग रहा है, और ये तुमने जब मोड़ आता है वहां भी इतनी तेज कार चला देते हो। तो वो कहता है तेरे को डर लगेगा ही नहीं, तू मेरे वाली टेक्निक यूज किया कर। कहती क्या। कहता जब मोड़ आया करे ना, मैं तो अखा बंद कर लेना। तो अच्छा। ठीक है, अपने हाँ, आप को भुलाई जाओ, अखा बंद रखो, तो गुम्मे रहो, नरक च पे रहो, डरते रहो, मरते बिल्कुल रहो, बिल्कुल, नो, ठीक है। दैट्स नॉट अ गुड वन। पर यही है ना, थोड़ा अवेयरनेस रखो और अपने आप को फिल्टर करते रहो, ये एवरी डे एंड एवरी मिनट। बिल्कुल ठीक बोला है, 124 आवर्स भी नहीं। तो आपने बहुत ही अच्छा समझाया हमको सब, वीर जी, वेरी वेरी नाइस। एंड आई वांट टू थैंक यू सो मच जो हमारे साथ आए हैं, फ्रेंड्स वगैरह आए हैं, प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में आते जाओ। एंड वीर जी को फिर बुलाएंगे, अभी तो ट्रैवल कर रहे हैं। एंड व्हेन ही कम्स बैक टू वेस्टचेस्टर देन विल कॉल हिम अगेन। But right now I think next week is traveling and he's going to be traveling for a while. So please keep on coming to our program. We have programs on Mondays, Wednesdays, and Fridays, the same time at 10:30 a.m. Different things, different topics, and of course, Veer ji ka to humko bahut acha lagta hai. It's one of our favorites. So please, you are his friend. You also our friend. Aap aao and हमारे साथ join करो हमारे programs. So thank you so much, friends. Thank नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। Shrikal. Thank you, Veer ji. Thank you so much for coming. I want to thank everyone. Thank you. Yeah. Yes. देखो वीर जी हसा भी देंगे ना, लाइटर नोट में सानू हसा भी दिता उन्होंने जान तो पहले, समझाया भी और हंसाया भी, देख लो। वीर जी, यू आर ग्रेट। अब मैं क्या क्या बोलूं। थैंक यू सो मच।